Hello, aspirants. Welcome to Super Kalam. I am your mentor and teacher Arpita Sharma. एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं विच इज मैम करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी तो हमने समझ ली. बाय द वे आई हैव कवर्ड हाउ टू कवर द करंट अफेयर्स in one of my classes, and the link of that class will be there in the description box of this video. But the point is कि current affairs, strategizing current affairs is important, but the main question is how to read the Hindu newspaper, which is the first and foremost source of current affairs. And then, should we make notes over it or should we avoid making notes? क्या सिर्फ पढ़ के हिंदू न्यूज़पेपर को रिटेंशन स्ट्रांग हो जाएगा? I have told you that 20 to 25% of the questions in UPSC prelims examination, you get it from the current affairs. But those 20 to 25% questions have to be covered from various sources. In the last session, I told you about the Hindu newspaper being the foremost source of the current affairs. Then I told you about the PIB website, Press Information Bureau. And then I told you about the different PYQs. Look at the pattern, how questions are being framed from the current affairs. Go through the PYQs multiple times. Understand the syllabus. Then only you will be in a position to identify which article to study from the newspaper. But in this class, I'll solve all your doubts. ना सिर्फ हम ये सीखेंगे कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, बल्कि हम ये भी सीखेंगे कि क्या उसमें से नोट्स बनाने रेलिवेंट है, कितने नोट्स बनने चाहिए, किस तरीके से नोट्स बनने चाहिए. When the Hindu newspaper is talked about, there are two ways through which you can make notes. Either it can be the digital way of making notes, just like we are making right now, or you can use e-notes as well. या Evernote यूज कर सकते हो आप, और हैंड रिटन नोट्स जिसके अंदर मैं बहुत ही अच्छे से माइंड मैप का कॉन्सेप्ट अप्लाई करती हूँ. माइंड मैप्स आर माई गो टू सोर्स. किसी भी चीज़ के लिए मैपिंग करना ज़रूरी है. अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई ये माइंड मैप क्या होते हैं. देन वी कैन अंडरस्टैंड. सी, नोट मेकिंग में अगर मैं बात करूँ नोट मेकिंग की, तो हमें पता है कि ई नोट्स बनाने तो फिर भी ईजी है. यू जस्ट कैन कॉपी एंड पेस्ट, राइट? बट when it comes to handwritten notes, which are my go-to source, because when we are making notes on our own, our answer writing skills also get developed. तो mind maps का मतलब क्या होता है? Mapping the information for retention, because you will be studying the new current affairs of the entire year for that one day of prelims. आपको ये पूरे साल के करंट अफेयर्स 365 डेज का इंफॉर्मेशन एक दिन के लिए याद रखना है, सिर्फ एक दिन के लिए. अब ये पॉसिबल नहीं है. कैसे पॉसिबल बना सकते हैं? मैपिंग के थ्रू. तो अगर आप डिजिटल नोट्स की तरफ जा रहे हैं, तो फॉर डिजिटल नोट्स आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा कम रिलाई करें. इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, देन डिजिटल नोट्स इज रिकमेंडेड. फॉर दैट आप एवर नोट यूज़ कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल, यू हैव टाइम, आप कॉलेज के साथ या फिर अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फुल टाइम, आई वुड रिकमेंड माइंड मैप्स टू बी यूज्ड. डोंट वरी, आई टेल यू हाउ टू मेक एवरीथिंग. बस ये पहला स्टेप है आज के सेशन का जो मैंने कवर किया है. Now let us go to the second step of this session today. What is the source? तो source हम discuss करने वाले हैं the Hindu newspaper. This is one such source जहाँ से मैंने खुद identify हर साल prelims में किए हैं approximately 20 questions directly. और अगर मेंस की बात करें तो approximately you can identify 4 to 5 questions directly in GS paper 2, GS paper 3 coming from the newspaper, specifically the editorial section. एडिटोरियल सेक्शन को कैसे पढ़ना है इसके ऊपर भी एक सेपरेट क्लास में लूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. टुडे आई विल टेल यू हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, हाउ टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड देन हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम देम. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप ये हो गया. थर्ड स्टेप जो आज हमने डिस्कस किया, थर्ड स्टेप क्या होगा कि भाई हाउ टू आइडेंटिफाई. अब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहेगा आपका सिलेबस. यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है. यू गो टू नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी एंड यू विल फाइंड द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन. ये रहा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस. यहाँ पर आप देखोगे वी हैव करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर्स हो गए, बोथ डोमेस्टिक दैट इज इंडिया के करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल आईआर हो गया. देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मेंस एग्जाम का सिलेबस देखते हैं.
व्हेन वी गो टू द मेंस एग्जाम सिलेबस, पेपर आपका 2 आ जाएगा, जीएस पेपर 1। यहाँ पर आप देखोगे कि वी हैव करंट अफेयर रिलेटेड, हमारे पास आ जाएगा रोल ऑफ विमेन, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। देन वील हैव वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, की नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जियो फिजिकल फिनोमिना लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा। दिस ईयर इन प्रीलिम साइक्लोन के क्वेश्चंस काफी आए हैं, है ना। Similarly, if we go to paper 2, you will find many important topics related to current affairs. For example, parliament, state legislature, separation of power, ये सब न्यूज में रहते हैं because of some of the other reasons, है ना। तो अगर आपके सिलेबस टिप पर है कि भाई जीएस पेपर 2 की बात हो रही है, तो इट विल रिलेट टू गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, देन यू कैन इजीली सिंपली आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो हमने एक और सोर्स पढ़ लिया यहाँ पर। वो सोर्स ये है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, प्रेफर मेकिंग डिजिटल नोट्स, एवर नोट पे आप बना सकते हो। इफ यू आर नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल, देन आई वुड से माइंड मैप से ज्यादा बढ़िया और कुछ नहीं है, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू रिटेन द इंटायर ईयर्स न्यूज फॉर दैट 1 D डे। सोर्स की बात करें तो हम द हिंदू को रेफर करेंगे, एंड आइडेंटिफाई करने के लिए आर्टिकल्स को, सिलेबस को रेफर करेंगे। Now let's start reading the Hindu newspaper. So I have today's newspaper for all of you. आज का न्यूज़पेपर आपकी स्क्रीन पर है। तो let us first understand how to identify the articles. अगर आप न्यूज़पेपर खोलोगे, पहला स्टेप आइडियली क्या होना चाहिए? द फर्स्ट स्टेप आइडियली शुड बी फ्लिप थ्रू द न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर जैसे ही मिलता है, यू हैव टू फ्लिप इट थ्रू, पेजेस को फ्लिप करो, एंड टेक अ पेन, हाथ में एक पेन ले लो, एंड मार्क द आर्टिकल विच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम। दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, इफ वी लुक एट इट, ये रेलिवेंट है। वाई इज इट रेलिवेंट? आई टेल यू वाई। बिकॉज इन दिस आर्टिकल इट इज टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकसभा कीवर्ड आ गया, स्पीकर कीवर्ड आ गया इसमें, और इसके अंदर एक कीवर्ड आ गया हमारा वॉइस नोट, वॉइस वोट। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि वी हैव वॉइस वोट, अनदर कीवर्ड। ये देखो, ये रहा। ठीक है, तो हमारे लोकसभा स्पीकर आ गई, लोकसभा आ गया, वॉइस वोट आ गया। वॉइस वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक येस और नो के थ्रू यहाँ पर वोटिंग होती है, एंड इट इज सेड दैट वॉइस वोट इज अगेंस्ट द एसेंस ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी, है ना। वी कैन नॉट हैव वॉइस वोट इन की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ गए। देन इमरजेंसी आ गई, 1975 का आ गया पॉइंट। तो इमरजेंसी पढ़ना जरूरी है। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज टू, फाइनेंशियल इमरजेंसीज हो जाती है, नेशनल इमरजेंसीज हो जाती है, स्टेट इमरजेंसीज हो जाती है ना। तो ये बताओ, ये आर्टिकल किस पेपर से रिलेटेड होगा? ये आर्टिकल रिलेटेड होगा पेपर 2 से, जीएस पेपर 2, बिकॉज इधर पॉलिटी आ जाता है। नाउ हियर सी, the essence of the article might be political, but the keywords in the article are not political. ये आपके static से related है। Speaker, how a speaker is appointed, what is a voice vote, is it in favor of democracy or not, what is emergency, what happened in 1975। तो ये कुछ आपका static portion से related है। तो हमने identify किया, first this article I will just write GS paper 2। सेकंड आर्टिकल मैं यहाँ देख रही हूँ, केजरीवाल जी की न्यूज चल रही है, तो मुझे ये नहीं जानना कि भाई अब क्या हो रहा है, वाई केजरीवाल जी इज इन जेल नाउ एंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर माई एग्जाम। देन व्हाट इज रेलिवेंट फॉर माई एग्जाम? ये सीबीआई क्या है? व्हाट इज दिस सीबीआई? Arvind Kejriwal ji is getting interim bail. What is interim bail? What is the meaning of custody? Judicial custody के ऊपर questions आ चुके हैं, है ना, prelims के अंदर। तो what is a judicial custody? What is this custody all about? What is the role of CBI? CBI के ऊपर question आए हैं। These are the 2 important points जो ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये भी मार्क कर लिया पेपर 2 और इस आर्टिकल के अंदर, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल आर्टिकल, राइट। सो आई विल टेक अप द की पॉइंट्स विच आर मैचिंग टू माई स्टैटिक सिलेबस। और ये कैसे पता चलेगा? जब मुझे सिलेबस की जानकारी होगी। अब यहाँ पर आप देखो, ये पेज, एक इमेज को मैं कभी भी मिस आउट नहीं करती हूँ। साउथ सफारी, हु इज दिस? दिस इज अ लेपर्ड। नाउ हियर इट इज रिटन, इट इज फाउंड इन बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। अब यहाँ पर आप देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देर आर 2 की वर्ड्स, लेपर्ड। दिस ईयर इन 2024 क्वेश्चन केम ऑन दी कैट फैमिली, लायन और लेपर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो लेपर्ड इज इंपॉर्टेंट, आई विल स्टडी दैट। सेकंड, बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, वेयर इज इट लोकेटेड? इसकी लोकेशन कहाँ है? ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये मैंने लिख लिया कि वेयर इज इट लोकेटेड, आई विल जस्ट राइट इट डाउन। देन अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब ये आ गया आपका पॉलिटिकल न्यूज है। टीएमसी वर्सेस गवर्नर प्लेज आउट ऑन द स्टेप्स ऑफ बंगाल असेंबली,
है ना? तो यहाँ पर मैं इसको हटा सकती हूँ। चाहे तो गवर्नर के बारे में पढ़ सकती हूँ, आई कैन स्टडी अबाउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एज इट हैज पॉलिटिकल एफिलिएशंस, है ना? Again, not a article that I would like to read. It has political connotation. Then this one is important. Niti Ayog's Niti Ayog's tourism project in Nicobar Islands, a threat to ecology, indigenous people. So this is important. ग्रेट निकोबार में क्या चल रहा है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अगेंस्ट एक टूरिज्म प्रोजेक्ट वैसे चल रहा है विच इज अगेंस्ट द एसेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बिकॉज वेन एवर देर आर टूरिस्ट एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल अभी इन कामाख्या टेम्पल ऑल्सो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दे वर टॉकिंग अबाउट फॉर टूरिज्म पर्पज, बट देर हैव बीन पिटिशंस विच आर गेटिंग साइंड नाउ कि भाई इट इज अगेंस्ट द एसेंस ऑफ द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ द टेम्पल, वहां पर कुछ भी रिकंस्ट्रक्शन कराना उस टेम्पल की स्पिरिचुअल एसेंस को खत्म कर देगा. So that is wrong. So similarly here also indigenous people, they are at threat because of the tourism project that is being constructed in Nicobar Islands. तो इसीलिए ये न्यूज में है. तो ये जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी एटसेट्रा, है ना? तो मैंने ये क्लासिफाई कर दिया. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अगेन इन दिस पेज देर इज नो सच इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इतना कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस पेज में नहीं है. वील मूव अहेड. देन हेयर ऑल्सो वी डू नॉट हैव, यस ये देखो आ गया, मैंने बताया था ना. ये किस सिलेबस से रिलेटेड होगा जरा बताओ फटाफट से. जस्ट नाउ वी हैड स्टार्टेड. दिस विल बी रिलेटेड टू जीएस पेपर 3, इंडियाज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी ओपन सेट बनरघट्टा. तो ये प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. प्लस अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल जू अथॉरिटी. सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है. चीता के बारे में पढ़ना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज कैट फैमिली से बिलोंग करती है एंड क्वेश्चन आया है कैट फैमिली पे इस बार. South India's first and country's largest leopard safari was inaugurated by Karnataka Environment Minister in the Bannerghatta Biological Park. Very relevant for prelims. तो प्री भी लिखेंगे, जीएस पेपर 3 भी लिखेंगे यहाँ पर हम, है ना? तो आई हैव आइडेंटिफाइड अनदर आर्टिकल. ये थर्ड आर्टिकल है जो मैंने, फोर्थ आर्टिकल जो आइडेंटिफाई किया. अब एडिटोरियल पर जाएंगे. व्हेन वी गो टू एडिटोरियल, नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के परस्पेक्टिव से. अब एडिटोरियल्स पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? आई विल टेल यू हाउ टू रीड द एडिटोरियल. बट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि व्हेन वी टॉक अबाउट एडिटोरियल, हाउ टू क्लासिफाई विच एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट. क्या क्लासिफाई करें जरा देखते हैं. तो क्लासिफाई के फॉर्म में हम यहाँ पर देखेंगे दैट ऑपोजिशंस लार्जर डेमोग्राफी एलओपीज बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. Leader of opposition in the 18th Lok Sabha must take his cue from the verdict of 2024 general election to restore normalcy. अब इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम की बात की जा रही है. देखो वेस्टमिंस्टर सिस्टम की बात हो रही है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द वेस्टमिंस्टर सिस्टम? ब्रिटेन में क्या पोजीशन होती है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की? हु इज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन? यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, कौन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन. तो ये आर्टिकल किससे आप बोल सकते हो मैच कर रहा है? इट इज मैचिंग टू जीएस पेपर 2. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. आई हैव आइडेंटिफाइड, ये आर्टिकल पेपर 2 का हो गया. देन अगेन यहाँ पर आप देखो, लिप सर्विस, रूलिंग पार्टी कैन नॉट क्रिटिक इमरजेंसी वाइल प्रमोटिंग अथॉरिटेरियनिज्म. ये थोड़ा पॉलिटिकल कोनोटेशन है, यू कैन रीड इट, बट जरूरी नहीं है कि इस पे से आप नोट्स बनाएं. रीड द रॉक्स टू इम्प्रूव इंडिया जियोलॉजिकल लिटरेसी. तो इंडिया अभी जियो हेरिटेज को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है? द प्रोटेक्शन लेवल इज अबिस्मल राइट नाउ. सो जीएस पेपर 1 पे आ जाता है, हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग आवर जियो हेरिटेज. जीएस पेपर 3 पे भी आ जाता है. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. नॉट पेपर 1 बट पेपर 3 में हम इसको प्रॉपरली कंप्लीटली डाल सकते हैं. सो आई हैव आइडेंटिफाइड 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हियर. अब यहाँ पर आप देखोगे कि विद द चेंज इन गवर्नमेंट रियल एस्टेट में वंस अगेन शिफ्ट टू अमरावती. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ना जरूरी है पेपर 3 के लिए. इट्स टाइम फॉर इंडिया टू रिक्लेम इट्स वॉइस ऑन टिबेट. पेपर 2 के लिए ये इंपॉर्टेंट है. द स्टेटस ऑफ टिबेट राइट नाउ, हाउ व्हाट इंडियन गवर्नमेंट आर डूइंग टू प्रोटेक्ट द टिबेटियन रेफ्यूजी पॉपुलेशन. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. देन वील मूव अहेड. अब हमेशा याद रखना, हिंदू पेपर में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एक पेज आता है अलग से. अब टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना जिस्ट दिया जाता है आर्टिकल का, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स आंसर राइटिंग. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेन्स के लिए. नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल टॉक्स अबाउट Delhi's वाटर क्राइसिस. देयर कैन बी मेनी रीजंस ना व्हाई देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन दिल्ली. अगर हम रीजन की बात करें, दिल्ली इज डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश फॉर इट्स ड्रिंकिंग वाटर नीड्स. एंड हरियाणा अभी पर्पसफुली क्या कर रहा है? पानी के सप्लाई को ब्लॉक कर रहा है.
क्योंकि वाई बिकॉज ऑफ द हीट सिचुएशन, एंड दैट इज वाई द रेजिडेंट ऑफ दिल्ली आर गोइंग वाटरलेस फॉर डेज. दैट इज द इंटायर इशू, और जो इस जिस्ट में समझाया गया है. यहाँ पर जीएस पेपर 3 के परस्पेक्टिव से, पेपर 2 के परस्पेक्टिव से, मेंस के परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. समझे? अब आगे बढ़ेंगे. अब देखो, हाउ वेल इज इंडिया टैपिंग इट्स रूफटॉप सोलर पोटेंशियल. पेपर 3 के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया ये, सोलर एनर्जी के परस्पेक्टिव से. व्हाट इज द आरटीएस प्रोग्राम? रूफटॉप सोलर के सोलर एनर्जी प्रोग्राम है ये. वेयर इन विच स्टेट्स इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, हाउ कैन वी ग्रो इट. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल पेपर 3 के परस्पेक्टिव से. वील स्टडी दिस. नाउ वी हैव फ्लिप्ड थ्रू द इंटायर न्यूज़पेपर. हमने पूरा न्यूज़पेपर फ्लिप कर लिया. ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है. वी हैव फ्लिप्ड थ्रू द इंटायर न्यूज़पेपर. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक नोट्स. अब आप बहुत ध्यान से इस पेज को देखना. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस, नाउ लुक एट दिस पेज विथ utmost awareness. This was the article, Severe Cyclonic Storm Remal Makes Landfall, 1 lakh evacuated in Bengal. Now in Bengal, cyclonic storm Remal, cyclone है एक Remal, उसने hit किया. Now here, what is important? First of all, we classify the article. Paper 1 के perspective से this article is important because geography का concept यहाँ पर आ जाता है. जब geography का concept आएगा, concept is cyclone. What I'll do, first I'll link it with the static topic. साइक्लोन एक स्टैटिक टॉपिक है. आप ज्योग्राफी में क्लास 9 से 12th की एनसीईआरटी में पढ़ते हो इसको. साइक्लोन के ऊपर मैंने सुपर कलाम से कुछ नोट्स बनाकर यहाँ पर अपने नोट्स बना लिए. आई स्टडीड साइक्लोन विद सुपर कलाम एंड आई मेड नोट्स ओवर हियर. अब यहाँ पर आप देखोगे इट इज रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन. मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी एंड हाउ इट मूव्स वो लिख दिया. तो जो रेलेवेंट है वो लिखा. मुझे कैसे पता चलेगा क्या रेलेवेंट है? जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 5 साल के अच्छे से नजर मारूंगी. Then only I'll come to know about the important article, the importance of the topic. For example, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ. Just give me a second. देखो, इस बार का 2024 का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखो, कोरियोलिस फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आया था. मुझे कैसे पता चला? बिकॉज साइक्लोन्स जब हम पढ़ते हैं तो साइक्लोन्स में कोरियोलिस फोर्स है जो काम करता है ना. दैट्स हाउ आई नो दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोरियोलिस फोर्स. सिमिलरली अगर मैं साइक्लोन्स की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं अपने नोट्स देखूं, इफ आई गो थ्रू माय नोट्स, इसीलिए मैंने साइक्लोन पे क्या पढ़ा कि साइक्लोन क्या है और वो कैसे होता है. देन साइक्लोन के टाइप्स भी होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स. तो एनसीईआरटी से आई वाज स्टडिंग. आई टुक द डायग्राम. I started understanding the diagram through Super Kalam and I made notes कि there are different types of cyclone, tropical, extratropical. And then in news, which cyclone was reflected? Remal cyclone. तो न्यूज में क्योंकि रीमल साइक्लोन था, द नेम वॉज गिवन बाय ओमान. ये इंपॉर्टेंट है कि ये नाम कहाँ से आया, कहाँ ये ओरिजिनेट करता है और इसका रीमल का मतलब क्या होता है. तो मैंने ये भी पॉइंट लिख दिया. नाउ आई एम डन विद द इंटायर आर्टिकल. I know what is a cyclone. I know what are the types of cyclone. I know what is remal and where is has it originated. तो हम क्या लिखेंगे? What, why, how, when, where. ये क्वेश्चंस पूछने हैं जब भी आप कोई आर्टिकल देखते हो. Whenever you go through any article, ask these questions and that's how you get to make your own mind maps. Again, inflation was in news. तो मैंने इन्फ्लेशन में लिखा कि व्हाट इज इन्फ्लेशन? रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस. व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू मेजर इन्फ्लेशन? वो मैंने पॉइंट आउट किया. व्हाट आर द रीजंस व्हाई इन्फ्लेशन टेक प्लेस? वो मैंने सुपर कलाम से पढ़ के नोट डाउन किया. आई अंडरस्टूड फ्रॉम सुपर कलाम एंड आई मेड माई ओन नोट्स इन माई ओन वर्ड्स. एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है वो मैंने पढ़ लिया. तो ये एक नोट्स तरीका हो गया बनाने का. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर कोई आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर में तो आई अंडरस्टैंड व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. उससे रिलेटेड ग्रेशम्स लॉ है वो मैंने नोट बना लिया. तो दिस इज हाउ आई मेक नोट्स व्हेन इट कम्स टू रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़पेपर. अब आपके सामने ही एक छोटा सा नोट बनाती हूं मैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द आर्टिकल. लेट्स मेक अ नोट ऑन दिस आर्टिकल. तो आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आर्टिकल एंड आई विल क्रिएट अ ब्लैंक पेज. Now let us use the screenshot of this particular article. आप ही के सामने नोट बनाने वाली हूँ मैं, so that you can also learn how to make naive notes. मैंने ये आर्टिकल रखा अपने पास. आप चाहो तो जस्ट एक हेडिंग लिख सकते हो.
तो यू विल राइट द हेडिंग, यू विल राइट पेपर, जीएस पेपर 3 को बिलोंग करता है ये आर्टिकल. Then you will write what are the keywords that you can see in the article. The keywords are, we have leopard and we have the Bannerghatta Biological Park. These are the two keywords. Now when it comes to the first keyword which is known as leopard, तो चलो leopard के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Let's study something about leopard. Because this year a question came on the cat family, lion के ऊपर, tiger के ऊपर question आया था. So first important point is I'll write the heading leopard over here and I'll make a small mind map. जब हम leopard की बात करते हैं, let us understand what exactly is a leopard. तो basically leopard क्या है? एक nocturnal animal है. It is nocturnal animal. Second important point, it feeds on, write it down, it feeds on smaller species of herbivores which are found in its range, जैसे hog deer, wild boar, चीतल हो गया. Then another important point, there is a kind of leopard which is known as melanistic leopard. ये मुझे कहाँ से पता चला? मैंने थोड़ी थोड़ी रिसर्च करी with the help of super कलाम, है ना, with the help of PYQs. Melanistic leopard को हम black panther भी बोलते हैं. It is also known as black panther. ठीक है. और इसको ना डिफरेंट स्पीशीज माना जाता है, बट ये डिफरेंट स्पीशीज नहीं होता है, लेपर्ड का ही पार्ट है. सो हियर मेलेनिज्म का मतलब क्या है? मेलेनिज्म मीन्स इट इज अ वेरी कॉमन अकरेंस इन लेपर्ड्स व्हेन द एंटायर स्किन ऑफ द एनिमल इज ब्लैक इन कलर इंक्लूडिंग द स्पॉट्स. ये जो स्पॉट्स है ना, इसको मिला के पूरा स्किन काली होती है, उसको मेलेनिज्म बोलते हैं. ठीक है. अब इसका हैबिटेट कहाँ पर है, कहाँ पाए जाते हैं? सो सब सहारन अफ्रीका. It is mostly found in sub-Saharan Africa. And also another important point कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन लेपर्ड जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, उसको पैंथेरा पार्डस फस्का भी बोला जाता है. एंड IUCN स्टेटस क्या है इसका? IUCN स्टेटस है वल्नरेबल. इट इज वल्नरेबल. इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में ये प्रोटेक्टेड है. ओके, साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में ये प्रोटेक्टेड है. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है. फर्स्ट नोट तो वी हैव मेड, द सेकेंड नोट वुड बी ऑन बानरघट्टा दी बायोलॉजिकल पार्क. तो बानरघट्टा नेशनल पार्क या बायोलॉजिकल पार्क के बारे में भी पढ़ लेते हैं. एंड टुडे इंटरेस्टिंगली सुपर कलाम ऑल्सो गेव क्वेश्चंस ऑन बोथ दीज टॉपिक, तो वील सॉल्व दोज क्वेश्चंस एज वेल. सो बानरघट्टा नेशनल पार्क ये कहाँ पाया जाएगा, इसके ऊपर एक छोटा सा माइंड मैप बनाएंगे. ठीक है, लाइक दिस वील राइट बानरघट्टा Biological Park, or you can say National Park. First important point, it is found near Bangalore in Karnataka. Okay. Second, the hill range which you can see over here is Anekal Range. Third हो जाएगा that it was declared as a national park in the year 1974. Okay. देन यहाँ पर ना 3 तरीके की 3 types of vegetation are found over here. What are the 3 types of vegetation which are found over here? First type of vegetation is known as the dry deciduous forest or scrub forest. Second type of vegetation basically जो यहाँ पाई जाती है वो है, write it down, the southern tropical dry deciduous forest. एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका द सर्दर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स्ड फॉरेस्ट. इसी के साथ आप अपना स्टैटिक भी प्रिपेयर कर सकते हैं. कैसे? टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ के, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एटसेट्रा. ओके. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर किस तरीके का फोना पाया जाता है. सो हियर इन बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क यू विल फाइंड द endangered Asian elephant. You will find over here the Indian gaur. You will find tiger. आपको यहाँ पर सांबर डियर भी मिलेगा. तो इस तरीके से हमने बानरघट्टा नेशनल पार्क के ऊपर भी पॉइंट बनाए. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यू एडेड पॉइंट्स मैं आपको वो लिखवा लेती हूँ यहाँ पर. There is a very important river which is found here which is known as सुवर्णमुखी stream.
ठीक है, दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, एंड इट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द पार्क. Another important point here is that it is the first biological park. It is the first biological park in India. In India, first biological park which is in India, which has a fenced forested elephant sanctuary. एंड ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखना है, 2006 में, इन 2006 इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई इंक्लोजर वॉज ऑल्सो इनॉग्रेटेड हेयर इन बानरघट्टा ओनली. तो ये मेरा एक छोटा सा माइंड मैप बन गया जहां मैंने पॉइंट्स लिख लिए. मान लो देर आर इफ this topic is repeated and there are other value addition points which are repeated in the newspaper someday, आप यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना के उन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, ऐसे है ना, छोटे छोटे आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हो यहाँ पर. सो यू कैन ऐड दोज पॉइंट्स ओवर हियर इफ इन फ्यूचर द न्यूज गेट्स रिपीटेड. So this is the crux how we can make notes from the Hindu newspaper, how we can identify, mark the important articles in the newspaper. अब जो सेकंड क्लास हमारी रहेगी उस क्लास के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगी कि कैसे एडिटोरियल्स को पढ़ के मेंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है, हाउ एडिटोरियल्स आर हेल्पफुल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. I hope that you understood what is the purpose of making this class for all of you. पर्पस ये है कि आप लोग सेल्फ सफिशिएंट एंड एम्पावर्ड बने और आपको पता चले कि एक्चुअली करंट अफेयर्स बहुत इजी होते हैं, हमने उसको टफ बना दिया है. एक्चुअली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट फैक्ट्स. वी हैव जस्ट कॉम्प्लिकेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. इस क्लास के बाद एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने कल थोड़े दिन पहले लाइव ली थी करंट अफेयर्स की, उसको ज़रूर देखना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा. अब मैं आपको कुछ सुपर कलाम के बारे में बताती हूँ कि कैसे आज के न्यूज़पेपर से सुपर कलाम ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. सो व्हेन यू गो टू सुपर कलाम यू विल गो टू योर डैशबोर्ड. जब आप डैशबोर्ड में जाओगे, आज की डेट पे आप क्लिक करोगे, here what you will see that today's important articles already have been summarized by super kalam कि भाई कौन से आर्टिकल पेपर वाइज, जीएस पेपर वाइज इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट इज द आर्टिकल टॉकिंग अबाउट. Then Super Kalam also summarizes the editorial, important editorial GS paper wise. But सबसे interesting fact है attempt quiz button. When you click on attempt quiz button, you will get 5 important daily prelims questions based on today's newspaper. स्पीकर की पावर के ऊपर क्वेश्चन आया है, ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, लेपर्ड के ऊपर आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क हमें पता है कर्नाटका में है. देन अगेन which of the following article provides for election of speaker and deputy speaker, which one is not correct. फिर यहाँ पर आप देखोगे तो I'll just click on the submit button. Almost 8 out of 10 तो मुझे मार्क्स मिले हैं. यहाँ पर आप देखो कि this is how the questions are asked by सुपर कलाम. इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी करंट अफेयर्स है उसी के बेसिस पे डेली डीपीक्यूज आ जाते हैं. तो मेरी प्रैक्टिस यहाँ पर भी हो जाती है डेली. So this is the procedure of the Hindu newspaper and it will take, see starting में ना it will take you almost 1 hour 40 minutes. But as you start getting consistent, जैसे जैसे धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आपके अंदर आएगी, आप देखोगे आपका टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने का, बिकॉज आर्टिकल्स आर रिपीटेड. ये स्पीकर के ऊपर आज आर्टिकल आया, ये रिपीट होगा ही होगा. जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट होंगे वैसे वैसे आप देखोगे दैट योर नोट मेकिंग टाइम इज गोइंग डाउन. पहले स्टार्टिंग में 1 आवर 40 मिनट्स, 1 घंटा 40 मिनट लगा, देन 1 घंटा होगा, देन उसके बाद और कम, फिर आप नेक्स्ट टाइम जब भी नोट्स बनाओगे 30-35 मिनट्स में आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे अलॉन्ग विद द डीपीक्यू प्रैक्टिस. सो इफ यू रियली एंजॉयड दिस क्लास, डू लेट मी नो इफ आपका कोई अलग से फीडबैक है, आपके कोई डाउट्स हैं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7 विद यू. आप कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड आई विल बी सॉल्विंग देम. Thank you so much, everyone.